Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 4th. Today we shall study chapter 6 of environmental study. The name of the chapter is ओमना's journey. ओमना का सफर. Journey means सफर. ओमना कौन है? एक लड़की है. ओमना and her best friend Radha were very excited. ओमना और उसकी सहेली राधा बहुत खुश थीं. They were going on a train trip to केरल. वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी. ओमना was going to her grandmother's house and Radha was going with her family for a holiday. ओमना अपनी नानी के घर जा रही थी और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने. Omna's father had gone to book train ticket for both the families. ओमना के पापा दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने गए थे. Then just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. सफर से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई. उसका पैर क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया. The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाएं पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए मना कर दिया. Radha's family had to cancel their tickets. राधा के परिवार को अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ी. The two friends were very sad. राधा और ओमना वो दोनों क्या उदास हो गए. They had made so many plans about what they would do together on the trip. दोनों ने मिलकर बहुत तैयारी की थी. Then Radha's amma had an idea. राधा की माँ ने एक उपाय बताया. ओमना, why don't you write down everything about your trip in a diary? उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफर की बातें डायरी में लिखती रहना. Then when you come back, Radha can read all about your trip. जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी. This way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train. इससे तुम्हें कोई बात भूलोगी नहीं और सफर में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा. Both the friends thought this was a good idea. Omna went home and found a notebook with blank pages to write all about her journey. Here are some pages from Omna's diary for you to read. दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी. ओमना ने सफर में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही. ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो. ओमना's डायरी. ओमना की डायरी. 16 मई. ये किस दिन की बात है? 16 मई की. As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. दोपहर का समय था. स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे. Soon the train reached the platform. जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची. We saw that the coach was already full. हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी. The train had started early in the morning from Gandhidham in Kuch. आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कुछ से चली थी. When the train came, there was so much confusion.
ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door. एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ लोग चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them. हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। By the time the train started, most people had found their seats and arranged their luggage. ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see that we were in our proper seats. कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें देखी। वह देख रहे थे कि सभी ठीक से सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली। उन्नी एंड आई हैव द मिडिल। उन्नी और मुझे बीच वाली। There were two college students who have the upper berth. सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के दो बच्चे बैठे हुए थे। On the other berth, there is a family with 2 children. पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे थे। They seem to be about our age. I will go and talk to them later. मैं उनसे बात जरूर करूंगी पर थोड़ी देर बाद। Now I am sitting near the window and I have started writing about our journey. मैं अब खिड़की के पास बैठी ये सब लिख रही हूँ। Just as I had promised you, I will stop now because Amma has opened the tiffin box. Amma had packed a lot of food, dhokla with chutney, lemon rice and some mithai. My mouth is watering. I will write more later. अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीजें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब मैं बाद में लिखूंगी। Why was it so crowded at the door of coach? ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? People do not like to wait, rather they were in a hurry to board or get down the train all at once. लोगों को इंतजार करना पसंद नहीं है, बल्कि वे एक ही समय में ट्रेन में चढ़ने या उतरने की जल्दी में थे। Have you ever traveled in a train when? क्या तुमने कभी ट्रेन में सफर किया है? कब? I have traveled in a train many times. My uncle lives in Delhi and usually we go to visit him. मैंने कई बार ट्रेन में यात्रा की है। मेरे चाचा दिल्ली में रहते हैं और आमतौर पर हम उनसे मिलने जाते हैं। What food would you like to take with you when you travel? अगर तुम सफर पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे और क्यों? I would like to take dry fruits, पूरी, vegetables, मिठाई etc. मैं सूखे मेवे, पूरी, सब्जियां, मिठाई आदि लेना चाहूंगी। What does the ticket checker do? टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? Ticket checker checks the tickets to see that all the passengers have proper tickets and are occupying correct seat. एक टिकट चेकर टिकट चेक करता है यह देखने के लिए कि सभी यात्रियों के पास उचित टिकट है और सही सीटों पर यात्री बैठे हैं। How will you recognize the ticket checker? तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? A ticket checker is in black coat. There is a name tag on his chest. There is a badge on both of his shoulders showing TTE. TTE stands for Traveling Ticket Examiner. एक टिकट चेकर काले कोट में है।
उसके सीने पर नाम का टैग लगा है। उनके दोनों कंधों पर एक बैच है जो TTE दिखा रहा है। TTE का अर्थ है यात्रा टिकट परीक्षक। आफ्टर लंच सम पीपल स्लीप्ड। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए। बट आई वॉज नॉट स्लीपी। पर मुझे नींद नहीं आई। आई कीप्ड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। आई सॉ मैनी फील्ड्स। बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई। मैंने बहुत सारे खेत खलियान देखे लेकिन वह सूखे और भूरे दिखाई दे। Sometimes we passed small villages. कभी कभी छोटे छोटे गांव भी हमें दिखाई दिए। They seem to be flying by. और वो हमें चलते हुए दिखाई दे रहे थे। Do you know that when the train is at a very high speed, things outside seem to be running in the opposite direction? क्या तुम्हें पता है जब ट्रेन तेजी से चलती है तो बाहर की सभी चीजें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। Earlier it was really hot. Now that it is evening, there is some breeze. कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। The sun is slowly setting and the sky has become orange. I have never seen it look like this in Ahmedabad. बाहर आसमान सतरंगी रंग का दिखाई दे रहा है, सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। We have just passed a station called Valsad. The train stopped for only 2 minutes, but even for the short time there was so much noise. हम अभी अभी वलसाड स्टेशन से निकले हैं। वहां ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी और उस स्टेशन पे बहुत सारा शोर हो रहा था। चाय गरम चाय। One man was calling बटाटा बड़ा। स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय गरम चाय। एक तरफ से आवाज आ रही थी बटाटा बड़ा। पूरी साग दूध ठंडा दूध। पूरी साग दूध ठंडा दूध। People were selling and buying food on the platform. We quickly bought some bananas and chicus through the window itself. लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीजें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। What did ओमना see from the window? ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा? ओमना saw fields, small villages, etc. which seemed to run in opposite direction. She also saw the beautiful orange sky at the time of the sunset. ओमना ने खेतों, छोटे गांवों आदि को देखा जो विपरीत दिशा में चलते दिखाई दे रहे थे। उसने सूर्यास्त के समय सुंदर नारंगी आकाश भी देखा। What are some of the things that are sold at railway station? रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीजें बिकती हैं? These are books, toys, fast foods, cold drink, etc. Omna saw hawkers were selling puri saag, puri and vegetables, batata bada, snacks, ठंडा दूध, कोल्ड मिल्क, गरम चाय, हॉट टी etc. ये किताबें, खिलौने, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि हैं। ओमना ने देखा कि फेरी वाले पूरी साग, पूरी और सब्जियां, बटाटा बड़ा नमकीन, ठंडा दूध, गरम चाय आदि बेच रहे थे। I have made some friends. They are Sunil and An. मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली है। वे सुनील और एन हैं। They are going to their grandmother's house in कोझिकोड. वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं। सुनील has given me some story books to read. सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। A little while ago, I went to brush my teeth, but there was no water in the bathroom.
मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहां पानी खत्म हो गया था। Somebody said that it will only be filled at the next big station. किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। थैंक यू।